seen about the measurement of information, right? And we have seen that what is the importance, why we should measure the amount of information in any message, because we want that the rate of communication should increase. And we know that whatever we are having the message, we do the encoding of that message with the help of some number of bits. So we should always use optimum number of bits to encode the message, so that we can transmit the maximum information with the help of minimum possible number of bits, right? So this was the thing, and we have also seen the entropy. And what was the meaning of entropy? It was the average information of any source, or we can say that it is the average information per message. This is entropy. So entropy tells us that what are those minimum number of bits may be there, which can be used to encode any message. Okay, so entropy tells us the optimum number of bits or average number of bits which is required to encode the message. And amount of information tells us that in any message how many number of bits are there which is carrying information. So this is important. Again, I am reiterating that when we are calculating the amount of information in any message K, and we are saying that this is X number of bits, right? What it means? It means that in the message NK, we are having X number of bits, or we need X number of bits to represent this message NK for the purpose of transmission of information, right? What is the meaning of entropy? That is H of NK. Entropy means the average, entropy of any source, right? Entropy of any source, right? Entropy of any source means this is the average number of bits which is required, average number of bits which is required to represent the messages of this source for the purpose of transmission of information from the source to destination. So this is the root meaning of this amount of information and the meaning of entropy, right? So what basically we are doing when we are calculating the amount of information, or when we are calculating the entropy of any source, we are going to find out the number of bits, or we are going to find out the required number of bits which should be used to encode any message or to represent any message for the successful transmission of the information. This is important. So now we are coming to the next topic. It is source coding. Undoubtedly, when you represent your message with the help of some number of bits, then we can say that this is nothing but a source encoder, right? This is nothing but an encoding, basically. This is nothing but the encoding. Encoding means you are representing your message in terms of bits. And why we are saying it is source encoding? Because we are having certain objectives behind it. We know that we need a high rate communication. So I should note it down. We know that we need a high rate communication, right? And definitely we are also having very limited bandwidth, right? So what it means? It means that in this limited bandwidth, I have to transmit more and more information to achieve this high rate communication, the objective of high rate communication, right? So what we can do, we can encode our message. We can encode our message in such a way that the number of bits which we are using to encode a message should be optimum, right? Because for example, you are having a message S0, S1, S2, S3, right? We are having these 4 messages. Then what is the option with me? We can encode these all symbols or messages with the help of 00, 01, 10, 11, right? This is the simplest possible encoding scheme which we can use to encode these 4 symbols. So the number of bits which we are using is 2, right? So we are using 2 bits, okay, to encode this message. Now, if I want to calculate the amount of information I, then I can be 2 here for us, right? Because we are representing our message by 2 bits. Okay. Now, for example, we are calculating the it is not a rule.
every time it will not it will not be there, right? So you will not make a rule that the number of bits can be the amount of information. It is not true always. But what I mean to say that amount of information will come in terms of bits. So for example, here we are representing S0 message with these 2 bits. So for example, we can say that these 2 bits are nothing but the amount of information for this source for this message S0, and 0, 1 number of bits are 2 for this S1, and likewise, right? And for example, we are also calculating the H of S. S is what? S belongs to all these messages, means there is a source which is generating these 4 symbols, and you are encoding these 4 symbols with the help of these 2 bits or 4 possible combination of these 2 bits, right? Now you are calculating HS. HS is the entropy of source, an average number of bits required for this source, right? So for example, it is coming out 1.5 bits. 1.5 bits. So what it tells us that this is the optimum number of bits. This is the optimum number of bits which we should use to encode this message. And what we are doing, we are using 2 bits uniformly. For every symbol we are using 2 bits. But entropy जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 1.5 बिट. तो entropy ये बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ बिट जो हम यूज कर सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 1.5 बिट हो सकते हैं. सो 1.5 बिट की जगह हम लोग कितना यूज कर रहे हैं 2 बिट्स यूज कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बैंडविड्थ खर्च कर रहे हैं, राइट? मतलब ये 1.5 बिट भेजकर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता था, लेकिन मैं भेज रहा हूँ 2 बिट्स, राइट? सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हाफ बिट हम एक्स्ट्रा भेज रहे हैं और इससे हमारी बैंडविड्थ एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रही है. ये सिंपली एग्जांपल लिया था मैंने, राइट? हम इसको देखेंगे करके मैथमेटिकली भी कि कैसे क्या चीजें ये निकल के आती हैं. बट अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई मैसेज है उसको मैं इनकोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनकोड करने के लिए मुझे ऑप्टिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होती हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पास बैंडविड्थ लिमिटेड है. मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसको ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स इनकोड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इनकोड करता हूं अगर, तो मैं उतने लिमिटेड बैंडविड्थ में बिना बात ही एक्स्ट्रा बिट्स भेज रहा हूं और जो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, और अल्टीमेटली मैं इस हाई रेट कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाऊंगा या उस ऑप्टिमम लेवल तक अचीव नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे कर लेना चाहिए था. तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो, राइट? सो ये सारी जो कोडिंग है इसका फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव है कि मुझे हाई रेट कम्युनिकेशन चाहिए जबकि लिमिटेड बैंडविड्थ मेरे पास है. तो कोडिंग इस तरीके से की जाए कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, इसको देखते हुए ये ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, है ना? हाई रेट कम्युनिकेशन हमें मिल जाए लिमिटेड बैंडविड्थ के होते हुए. तो कोडिंग हमें इस तरीके से करनी है. अल्टीमेटली आप इस वो समझ में आ गया इसका मतलब, है ना? तो मेरा बताने का मकसद ये था कि व्हाई वी वांट टू यूज सोर्स कोडिंग, राइट? तो सोर्स कोडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं देखूं एक तरीके से, सोर्स कोडिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, है ना? सोर्स कोडिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है दैट to find minimum number of bits, to find minimum number of bits to encode the message. Right? Or in some other words, we can also say that the source coding can be used to compress the message. So it can be used as a compressed codes, right? और अगर आपको याद हो, when we were studying about the block diagram of digital communication, in that whole block diagram, series of the block diagrams, the one block of was source coder, and what we were doing in the source coder, we are reducing redundancy. याद है हम लोग क्या पढ़ते थे? redundancy को reduce करते थे. redundancy को reduce करने का मतलब कहीं कुछ repetition of bits या extra bits हमारे लग रहे हैं तो वो हट जाए, ठीक है? तो हम लोग redundancy को reduce करने के लिए भी source coding का use कर सकते हैं. So we can also write it down here that to reduce the encoding redundancy, right? To reduce the encoding redundancy. So these
are the few objectives with us that why we are using source coding, right? Because ultimately we want to find a minimum or optimum number of bits, or we want to compress the data, or to reduce the encoding redundancy so that we can achieve high rate communication, as well as our storage requirement will also reduce. So एक और point लिख लीजिए, storage requirement will also reduce, right? स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी अगर हम लोग सोर्स कोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ये जो स्कीम होती है जिसमें हम लोग फिक्स नंबर ऑफ बिट्स यूज करते हैं किसी मैसेज को इनकोड करने के लिए, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ कोड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लेंथ कोड, फिक्स्ड लेंथ कोड। Okay, definitely I have written down 3-4 points, right? Well, we can also say that we should use source coding to match, you can write it down, this is also a very technical point, to match the number of bits to match the number of bits to minimum possible value for entropy, right? To match the number of bits to minimum possible value of entropy. What I mean to say that कि अगर हमारे पास entropy 1.5 bits आई है, तो अगर ये पॉसिबल होता कि मैं सारे बिट्स को 1.5 बिट से ही कोड कर लेता तो वो मेरे लिए ऑप्टिमम केस होता, राइट? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको या तो 2 बिट्स चाहिए या 1 बिट चाहिए, 1.5 बिट हमें मिल नहीं सकते। सो ये हम सबको पता है। तो हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा सोर्स कोडिंग का कि हम सोर्स कोडिंग जब लगाएं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ हम यूज कर रहे हैं कोडिंग के पर्पस के लिए, उनकी वजह से जो एंट्रोपी निकल के आए वो लगभग यही निकल के आए इसके आसपास जो एंट्रोपी ऑफ द सोर्स है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। मैं यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। कि 1.5 बिट से हम कोड नहीं कर सकते, इट इज ट्रू, बट अभी क्या है जस्ट फिक्स लेंथ कोड में या तो हमें 2 बिट चाहिए या हम 1 बिट ले या कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर हम, बट अगर मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बाद मैं सोर्स की एंट्रोपी लूं, कैलकुलेट करूं, तो वो कुछ एंट्रोपी के जैसे निकल के आनी चाहिए, ठीक है? मतलब एंट्रोपी के आसपास पहुंचने की कोशिश करनी है मुझे। एंट्रोपी मुझे बताता है एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। अब जो बिट्स रिक्वायर्ड है वो एंट्रोपी ने मुझे बता दिए, लेकिन मैं यूज कर पाऊंगा उन बिट, उतने नंबर ऑफ बिट्स से नहीं यूज कर पाऊंगा, वो मेरे लिए चैलेंज है। तो मुझे कैसी कोडिंग इस्तेमाल करनी है? मुझे ऐसी कोडिंग इस्तेमाल करनी है कि जब मैं लेंथ ऑफ कोड निकालूं, माइंड इट, लेंथ ऑफ कोड, इट कैन बी सेट एज अ लेंथ ऑफ कोड। ये लिख लो सारे कोड। ये फिक्स्ड लेंथ कोड क्यों है? तो कि सब में 2 बिट यूज किए हुए हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ बिट्स to represent any symbol can be named as length of code. इसको भी लिख लो, number of bits need to represent the symbol is called as length of code. The length of code, right? So we can have fixed length code क्योंकि इन सब में जो number of bits है वो कितने हैं? 2 है, तो it's a fixed length code है, right? But to achieve this entropy, we should not use fixed length code. Rather than we can use variable length code, right? So मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने लिख लिया होगा, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ये भी आपने लिख लिया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा इसको आपका।
मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल एस नॉट बहुत प्रोबेबल नहीं है, सो उसको मैं नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा क्यों दूं, राइट? तो मैं ऐसे कर सकता हूं, जैसे इसको मैंने 0 से इनकोड कर दिया, इसको मैंने 0 1 से इनकोड कर दिया, इसको 1 0 से, इसको 1 1 1 से, राइट? ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया। So ultimately what I mean to say that here we are not using fixed number of bits for every message. Why we should give more number of bits to less probable message? जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जिनको होने की संभावना बहुत कम है, उनको मैं ज्यादा बिट्स क्यों दूं? तो उनको मैंने कम बिट्स दिए। जिसको होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, उसको मैंने ज्यादा बिट्स दिए। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ कोड। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल लेंथ कोड। So we can use variable length code to achieve the value of entropy. To achieve the value of entropy. So variable length code हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये variable length code ultimately क्या हो सकते हैं हमारे लिए? सोर्स कोडर हो सकते हैं, राइट? अल्टीमेटली हमें सोर्स कोडिंग ही तो करनी है, तो सोर्स कोडिंग में हम लोग वेरिएबल लेंथ कोड्स यूज कर सकते हैं। And we can use variable length code on the basis of the probability of occurrence of any symbol, and then with the help of this variable length code we can achieve the value of entropy, right? Which is the objective of any source coder. Which is the objective of any source coder, to match the number of bits to minimum possible value of entropy, right? बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सो ये सब चीजें और क्लियर होंगी तभी जब हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। विदाउट एग्जांपल तो ये सब डेफिनेशन बन के रह जाएंगे। सो राइट डाउन द हेडिंग Huffman code, which comes into the category of source coding. So हम एक एग्जांपल लेंगे Huffman code का और देखेंगे कि ये जो सब बातें हमने कही हैं कि क्या है इनका मतलब, ठीक है? बहुत ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोर्स कोडिंग यूज करने के, और हाँ बोलो Huffman code is example of source coder, right? और ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेगा जो सोर्स कोडर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये Huffman is the name of scientist, उन्होंने डिजाइन किए कोड सारी। तो हम लोग देखेंगे Huffman कोडिंग में हम लोग कैसे इस कोडिंग को अचीव करते हैं, ठीक है? सो राइट डाउन एग्जांपल। वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 messages. We are having 6 messages. You should write down the example. मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। We are having 6 messages with the probability for example I'm writing here P S0, P S1, P S2, P S3, P S4. Okay, fine. So 1 2 3 4 5. Okay, we are having only 5 messages, right? हमारे पास 5 मैसेज हैं जिनकी कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी क्या है? PS0 is given 0.15, PS1 is given with 0.2, PS2 is given with 0.15, PS3 is given with 0.25, and PS4 is given with 0.25, right? तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये हमारे पास 5 सिंबल्स हैं, उनके ये प्रोबेबिलिटीज लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। उनको क्लियर कट ऐसे ही चलना है हर एग्जाम प्रॉब्लम में हमें। फर्स्ट स्टेप होगी लिस्ट सिंबल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिस्ट ऑल द सिंबल्स in decreasing order of probability, right? What we mean here, we mean that the highest probability will be at the top and then we are going down in the decreasing manner, right? So you can see here these PS4 and PS3 both are having the probability 0.25, which is the maximum one.
then we can have 0.2 and then we can have 0.15 0.15. so हम कैसे भी अरेंज कर लेंगे इसको. फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे अरेंज किया है, ये हेडिंग लिखी यहाँ पर सिंबल्स, राइट. सो सिंबल S3 को रख दिया ऊपर, फिर S4 को लिख दिया, इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है. फिर मैंने S1 को लिख दिया, फिर मैंने S2 और S0, है ना, S2 और S0. इन सिंबल्स को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया. अगर दो इक्वल है तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. इनके प्रोबेबिलिटीज इनके सामने लिख लो, जो भी इनके प्रोबेबिलिटीज हैं. S3 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, S4 की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है, S1 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, S2 की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, एंड देन S0 की प्रोबेबिलिटी भी 0.1. ठीक है. Now step 2 I should write down here because यहाँ पर तो पूरा न्यूमेरिकल चलेगा. मैं स्टेप 2 नीचे लिख देता हूँ, ठीक है. आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, दिख रहा है सेकेंड स्टेप, and this second step will continue till the end of algorithm, right. Second step क्या है, that combine the two least possible probabilities, combine oblique add two least probable probabilities, राइट. हमें क्या करना है, जो लीस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं इनको कंबाइन कर देना है, फिर नई टेबल बनानी है, ठीक है. जैसे मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं क्योंकि ये दोनों लीस्ट पॉसिबल है, क्योंकि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया. सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.30, और 0.30 की अगर बात करें तो वो इन सब में मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. तो मुझे क्या करना है, 0.30 को तो टॉप पे रख देना है, ठीक है, और बाकी इसके नीचे एज इट इज उतार देना है. सो 0.25 0.25 एंड 0.2, राइट. ये मैंने नीचे के दो ऐड कर दिए, और जो ऐड करने के बाद प्रोबेबिलिटी बनी वो डेफिनेटली मैक्सिमम थी, तो वो सबसे टॉप पर पहुंच गई, और बाकी तीनों के तीनों मैंने नीचे ऐसे लिख लिया, ठीक है. सिमिलरली अगेन आई विल रिपीट द स्टेप नंबर 2. अब नीचे के ये वाले दोनों ऐड कर देने हैं मुझे, ठीक है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.45 अगर ऐसे इसमें देखेंगे तो सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वही है. तो फिर इन दोनों को ऐड किया मैंने, और ऊपर सबसे ऊपर 0.45 और बाकी दोनों नीचे उतार दिए 0.30 0.25, ठीक है. अगेन आई विल रिपीट दिस ऑपरेशन कि नीचे के दोनों मुझे ऐड कर देने. जब मैं नीचे के दोनों ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0.55, और ये क्या बचेगा 0.45. ये एल्गोरिथम यहां पर आके दिख नहीं रहा. दिख रहा है बेटा सभी को 0.55 और 0.45. यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. एकदम क्लियर कट है. आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है, और दो को ऐड करते जाना, और कब तक ऐड करते जाना तो लास्ट में 2 नहीं बच जाएंगे, ठीक है. बाइनरी कम्युनिकेशन है, 2 बच जाएंगे, वही एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद तो एक ही बिट बचनी है, उसको कोई फायदा नहीं, राइट. तो हमें तब तक ये एल्गोरिथम चलाना है, फाइन. अब बारी आएगी मुझे कोड देना है. ध्यान दो, कोड कैसे देना है बहुत ध्यान से समझ लो. जब मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने पहले आपके सामने ऐसे लिख दिया है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एक ही बार में दोनों काम कर लेंगे.
अभी क्या करना है, जैसे ही मैंने दो ब्रांचेस को ऐड करके एक सिंगल ब्रांच बनाया, इन दोनों ब्रांचेस को कोई भी रैंडमली आप बिट अलॉट कर दो, ठीक है। जैसे मैंने इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, आप चाहे तो 1 0 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बिट इसको दे दिया, एक बिट इसको दे दिया, ये ऊपर चला गया, ठीक है, जाने दो। अब ये दो नीचे वाले हैं, देखो इन दोनों को भी ऐड किया मैंने, इन दोनों ब्रांचेस को भी इसको 0 दे दो और इसको 1 दे दो, ठीक है। फिर इन दोनों ब्रांचेस के ऊपर भी 0 लिख दो और 1 लिख दो। लास्ट में जो दो बिट बचेंगे इनको भी 0 और 1 दे देते हैं, राइट। ये दो बिट है 0 और 1। क्या दे पाओगे, कोई दिक्कत है इसमें? 0 1 0 1 0 1 और 0 1, लास्ट वाले जो दो बचेंगे उनको 0 1। तो ये अगर दोनों को ऐड करोगे तो आगे 1 बनेगा जाएगा, तो इन दोनों ब्रांचेस को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। सो 0 और 1 दे दिया, 0 1 दे दिया, 0 1 दे दिया, 0 1 दे दिया, ठीक बात है, ठीक है बेटा। प्लीज मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सब पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, जैसे 0 1 दे दिया फर्स्ट वाली को और फिर 1 0 दे दिया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ओके 0 1 की जगह यहाँ 1 0 कर लो, वहां 0 1 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे कोड निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे हर मैसेज को कोड देना है। ये और ऑब्जेक्टिव का सोर्स कोड का काम क्या है, इन सारे मैसेज को मुझे कोड देना, बिट्स देने हैं ना, बिट्स रिप्रेजेंट करने हैं ना इनके लिए, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो कोड निकालने के क्या करना है, बैक ट्रैक करना है, इधर से पीछे की तरफ आना है, ठीक है, इधर से पीछे की तरफ आना है। तो अगर मान लो, ध्यान दो, ये 0.45 में कितने बिट दिए हुए हैं, 1, मान लो इसका कोड 1 है, तो फिर अगर इसका कोड 1 है तो इसका कोड भी क्या है, 1 ही है। 0.45 को तो मैंने कोड दे दिया, इसका कोड क्या है, 1, मैं ऐसे सर्कल के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। अब मैं चला, मुझे इन दोनों को भी कोड देना है, ठीक है, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा, यहां से चलूंगा तो 0 बिट और 0 बिट, तो 0.30 को मतलब मैं ऐसे चल के आ रहा हूं, ऐसे चल के आ रहा हूं, ठीक। तो यहां 0 पहले से था, एक 0 यहां मिल गया, तो इसको कोड क्या हो गया, 0 0, ठीक। अब सिमिलरली मैं यहां से नीचे भी जा सकता हूं, तो यहां से जब चलूंगा 0 और यहां क्या आ गया 1, तो इसको कोड देता हूं 0 1, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब मैंने 0.30 0.25 दोनों को कोड दे दिया। 0.30 का कोड हो सकता है 0 0 और 0.25 का कोड हो सकता है 0 1, ठीक। अब मुझे इन दोनों को कोड देना है, ठीक है। अब मैं फिर से बैक ट्रैक करूंगा, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। अब यहां से पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से बैक, क्योंकि यहां से तो कोई रास्ता आ नहीं रहा है, ठीक है, ये रास्ता इन दोनों के पास जा रहा था, तो मैं यहां से बैक ट्रैक करूंगा इस जगह से। ये 1 है, 1 और इसका क्या है 0, तो इसको कोड दे सकता हूं 1 0, ठीक। और ये 1 आ गया, इसको कोड दे दूंगा 1 1, ठीक है। अब देखो यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता जाएगा नहीं, रास्ता तो इन दोनों के पास। सर हाँ अभी रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये फिर से देखो यहां से बैक ट्रैक करेंगे, 0.30 से पीछे आएंगे, तो 0.30 से पीछे आओगे, यहाँ आओगे, तो ये पहले वाले बिट पे पहुंचोगे तो क्या 0 0 यहाँ था, 1 0 यहाँ मिल गया, तो इसको कोड दे दिया 0 0 0, और जब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे 0 0 से यहाँ आएंगे तो उसको कोड क्या दे देंगे 0 0 1। मतलब पहले क्या काम करना है, प्रोबेबिलिटीज ऐड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। फिर कोड निकालने के लिए पीछे आना है, तो पीछे कैसे आना है, सबसे पहले इसको कोड दे देना है 0 और 1, ठीक है। फिर यहां से पीछे चलना है, तो नीचे वाले दो बिट्स को कोड दे दोगे। अब यहां से 0 0 तो 0 0, यहां से चले 0 और 1 तो 0 1, इसको 0 1 कोड दे दिया, ठीक। ये दो मैसेज कंप्लीट हो गए। अब 0.45 का कोड क्या होगा, वो यही कोड होगा जो यहां दिया था 0.45 का कोड, यहां आ गया कोड, ठीक है। अब इन दोनों को कोड निकालने के लिए भाई यहां से बैक ट्रैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से जो बैक ट्रैक है वो तो इन्हीं दोनों मैसेज पे खत्म हो गया, तो मुझे यहीं से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहां से बैक ट्रैक किया, जो भी पॉसिबल एक्सट्रीम होगा वहां से बैक ट्रैक करेंगे, तो यहां से बैक ट्रैक किया, तो यहां से 1 लेके चले तो 1 0, फिर यहां से 1 1, तो उसको 1 0 दे दिया, 1 1 दे दिया, ठीक है। और जो मनिका ने क्वेश्चन उठाया था, मैं फिर से बता दूं, ये मैसेज अलग है, ये मैसेज अलग है ना, दोनों को अलग अलग बिट्स दिए हुए मैंने, ठीक है। अब 0.25 का कोड हो गया 1 0, 0.2 का कोड हो गया 1 1,
और इस 0.25 का कोड 01 हो गया, ठीक है, और 0.30 का कोड क्या हो गया, 00 हो गया। अब मुझे इन दोनों बिट्स का कोड निकालना है, तो मैं यहां से ही बैक ट्रैक कर पाऊंगा, तो इस वाले नेक्स्ट से प्रीवियस पे जाना है, तो 00 लेके चले और यहां पहुंचे तो 000 हो गया, 00 लेके चले और यहां पहुंचे तो 001 हो गया, राइट। तो ये कोड हो गया। अब क्या यहां पर 0.2 का कोड है मेरे पास? यस, ये रहा 11, ठीक है। क्या 0.25 का कोड है? यस, ये रहा 10। क्या इस वाले 0.25 का कोड है? यस, इट इज 01। अब कोई मैसेज ऐसा बचा जिसका कोड नहीं है मेरे पास? सभी का कोड है मेरे पास, बोलो बेटा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं S0 सिंबल की बात करूं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 थी, तो S0 सिंबल ये रहा, इसका कोड क्या है? 001, ठीक है। सिमिलरली मैं S1 सोर्स की बात करूं, S1 का कोड क्या है? 11। सिमिलरली S2 का कोड क्या है? 000। सिमिलरली S3 का कोड क्या है? 01। और S4 का कोड क्या है? 10। S0 बेटा क्लास ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा मुझे। कोई स्टेप कोड का काम क्या है? सोर्स कोड का काम है कि हर एक मैसेज को कुछ बिट्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये सोर्स कोड का काम है। अब वो जो बिट्स प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, उनके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे, जो अचीव हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो सोर्स कोडिंग के अंदर कुछ स्पेशल कोड्स है, जैसे हफमैन कोड है, वो एक एल्गोरिथम है जो अगर अप्लाई करते हैं हम मैसेज के ऊपर तो हमको वो कुछ कोड प्रोवाइड करता है, और ये कोड अनडाउटली ऑप्टिमम कोड होंगे। ये एंट्रोपी के बहुत नजदीक होंगे, तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बट अभी के लिए पहले कोड बनाना सीखना जरूरी है। ये एंट्रोपी के बहुत नजदीक होंगे और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये कोड करता काम कैसे है? हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि साहब मेरे पास S0, S1, S2, S3, S4 ये 5 मैसेजेस हैं, इनकी कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं, आप इन सारे मैसेजेस को कोड प्रोवाइड करो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट। हमने क्या किया, पहले स्टेप में इन सारे मैसेजेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने लिख लिया। तो जो भी मैसेज थे 0.25 को ऊपर लिख दिया, 0.25, 0.2, 0.15, 0.15। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो नीचे के दो प्रोबेबिलिटीज हैं सबसे लीस्ट वाले, कम वाले, उनको ऐड कर देना है और देखना है कि ऐड करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं। कोई जरूरी नहीं हर बार वो टॉप पे पहुंचे, कोई जरूरी नहीं, कभी कभार वो टॉप से नीचे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, बट इस एग्जांपल में टॉप पर पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं। हमने दोनों ऐड किए और वो टॉप पर पहुंचा दिया उनको। बाकी तीनों प्रोबेबिलिटीज इससे छोटे थे तो एज इट इज यहां उतार ली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जाहिर सी बात है जो नई टेबल बनी इसमें ऊपर सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है और नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटीज लिखे हुए हैं। अब लास्ट के जो दो प्रोबेबिलिटीज हैं ये सबसे लीस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं, इनको फिर ऐड कर दिया। इनको ऐड किया तो जो प्रोबेबिलिटीज आई वो फिर सबसे मैक्सिमम आ गई, तो उसको फिर अगली टेबल जो बनाई उसमें टॉप पर लिख दिया और बचे वाले दोनों नीचे लिख दिए इसके। अब फिर लीस्ट प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लिए और फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट किया। अब अल्टीमेटली काम कब तक करना था? जब तक लास्ट में दो नहीं बच जाए, ठीक है। तो बाइनरी कम्युनिकेशन है, 0 और 1 बिट को ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो लास्ट में दो रह जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर दो रह जाएंगे तो आप दोनों को कोड कर सकते हो 0 और 1 में, तो ये दो बच गए। अब इन दोनों को मैंने कोई भी रैंडमली 0 और 1 एक एक कोड दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया। आप चाहे तो उल्टा कर सकते हो, इसको 1 इसको 0 कर लेते, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं। अब आप और ये दो मैसेज तो कंप्लीट हो गए। अब इन दो मैसेजेस में अगर आप देखो तो 0.45 और 0.55 ये सब मैसेज कंबाइन होके आए हैं। जो ओरिजिनल मैसेजेस हैं वो तो ये हैं, प्रॉब्लम इनको कोड तो इनको मिलना है, तो फिर यहां से पीछे चलना शुरू करेंगे, वापस यहां तक पहुंचना है। तो पीछे चलते समय आप देखो इन दोनों मैसेजेस में ये अगर 0.55 से पीछे चलते हैं तो फिर हम इन दोनों मैसेजेस के पास पहुंचते हैं। तो जब यहां से पीछे चलेंगे तो ये 0 बिट ऑलरेडी कोड के साथ है, तो ये 0 को ले लेंगे और यहां जो पहुंचेंगे जो बिट मिलेगी वो ले लेंगे, तो 0 इसको कोड दे दिया और 01 इसको कोड दे दिया, राइट। 0.45 के पास 1 कोड था, वो एज इट इज यहां कॉपी कर दिया। अब मुझे जो पीछे जाना है यहां से यहां तक ही पीछे आ पाओगे और तो कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर अब यहां पहुंचने के लिए मुझे इससे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये वाला जो यहां से शुरू हो गया 1 से गए पीछे तो 0 पे मिले तो 1 0 दे दिया, फिर 1 से चले 0.2 पे मिले तो 1 1 दे दिया, ठीक है।
अब ऊपर के जो दोनों मैसेजेस हैं वो देखो, यहाँ पर उनको कोड ऑलरेडी मिल गया 0001, फिर बैक ट्रैक किया 00 से और यहाँ आ गया तो 000, यहाँ आ गया तो 001। बाकी देखो तीनों मैसेजेस के कोड यहाँ लिखे हुए 01 10 11 आपने लिख लिया। इस तरह से आपने सारे मैसेजेस को, आपने कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने हफमैन कोड का ये एल्गोरिथम देखा है, कल हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे और एक एग्जांपल और देखेंगे, ताकि ये और वो एग्जांपल आप लोग करोगे ताकि और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस एक बार हो जाए। ठीक है, समझ में आया बेटा?